many of us is this question important at some time or the other? हम में से कितने लोग हैं जिनके लिए ये सवाल कभी ना कभी रेलेवेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे दूसरे को प्रभावित कर दूं? ठीक, ज्यादातर लोगों के लिए that means that this is not only his question, this question belongs to many of us, rather most of us. ठीक है ना? ये हम सबका सवाल है, तो इसे हम सुनेंगे भी ऐसे ही जैसे ये सवाल हमने ही पूछा हो. ठीक है, ये सिर्फ इनका सवाल नहीं. Now let's see. Influencing others. Why do I want to influence others? Why does anybody want to influence others? आप दूसरे को प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? क्या वजह होती है जिसकी वजह से हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं? Yes, a few reasons please. एक एक करके हाथ उठाएं. Yes. Nobody will whisper. आपको बोलना, आप हाथ उठाएंगे. You are welcome to speak, but not while sitting. Yes. Image. To project a favorable image. Good. Right. And yes. To get respect. We already have two very popular reasons with us. One, to project a favorable image, and second, to get respect, to earn respect. और भी कुछ है एक आध रीजन, उन्हें ले लें फिर आगे बढ़ें. Yes. Anything else? All right, let's proceed with these two. Now, why do I want to have a favorable image in the eye of the other? मैं ये क्यों चाहता हूँ कि किसी और के मन में मेरी एक अनुकूल छवि बने, एक अच्छी छवि बने? Why am I often so bothered about it? Do not just take this as something natural. इस बात से ये कहकर के बल्ला मत झाड़ लीजिए कि ये तो होता ही है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है. If it is happening so frequently with us, with all of us, we need to investigate it. क्योंकि फिर इन्हीं बातों से जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है. These are the things that make our daily lives. Why is it that I am so eager, so anxious to project an image in the eye of others? Let's take this. If I am very eager that in front of a person I must have a particular kind of image, तो मैं उसके सामने किस तरह का व्यवहार करूंगा? पॉजिटिव करूंगा या वैसा करूंगा जैसा वो चाहता है? Now, will I be able to honestly express myself? Once this thought has arisen in my mind that I must act so as to please the other person. Now, do I have the freedom of free will available to me? अब मेरा ध्यान इस पर नहीं रहेगा कि मुझे कैसा होना है, मेरी क्या समझ है, मुझे क्या कहना चाहिए. मेरे एक्शंस अब मेरी समझ से नहीं निकलेंगे. मेरे एक्शंस अब लगातार इस डर से, इस कंसर्न से निकलेंगे कि सामने वाला मेरे विषय में क्या सोच रहा है. ठीक, उसके इशारों पर चलूंगा मैं. अगर सामने वाला बैठा है, वो एक तरह की बात में यकीन करता है, तो उसके प्रतिकूल बात बोलने में मैं डरूंगा, क्योंकि मुझे अपनी छवि खराब होने का डर रहेगा. So the first thing that has happened, the moment I have created this kind of a concern in my mind is that
Rahul, we need our friend, this one in blazer, come, no, पीछे वाला, so come right up front. आगे आओ, उठो. Go and sit there. All of you clearly understand that every minute when I'm speaking is being shared by all 200-250 members of this audience. अगर कोई यहाँ पर 1 मिनट भी खराब करता है तो वो 250 लोगों का 1 मिनट है. 250 man minutes, which means 4 man hours. It is criminal. It is criminal. तो अपने एक्साइटमेंट पे काबू पाइए, क्योंकि आप यहाँ पर जब बैठे हैं तो दूसरों के प्रति भी उत्तरदायी हैं. Whatever you are doing is affecting everybody who is sitting here. I can see there are a lot of faces who are deeply in attention right now. And 1 or 2 mischief makers spoil it for everybody. We cannot have any tolerance for them. अभी सिर्फ इतना कर रहे हैं कि उनको बुला के आगे बैठा रहे हैं. If it happens again, our response will be more harsh. So do not let it happen. This is a very, very nice, peaceful discussion. Let it remain that way. No whisperings, no sounds of any nature. Alright. We were saying that the moment I am taken over by a concern to have a favorable image in the eye of the other, that exact moment I lose my freedom. Now have all of us clearly seen this? जैसे ही मेरे मन में ये इच्छा उठती है कि मैं सामने वाले की आंखों में अपनी एक खास तरह की छवि, मूर्ति स्थापित करूं, ठीक उसी समय मैं अपनी स्वतंत्रता खो देता हूं, क्योंकि अब मैं वो नहीं हो सकता जो मैं हूं. अब मुझे वो होना ही पड़ेगा जो सामने वाला चाहता है कि मैं हूं, या कि जैसा सामने वाले के मन में मेरी छवि है. वो छवि किसी भी कारण से बनी हो, बनी अतीत में ही है, बनी पहले ही है ना? ठीक. अब उस छवि को कायम रखने के लिए, वो छवि झूठी है, याद रखिएगा, क्योंकि सत्य मेरा बस वो है जो मैं अभी हूं. वो छवि आ रही है अतीत से, कहीं और से, और हर छवि आधी अधूरी होती है. मैं पूरा क्या हूं ये सिर्फ मैं जान सकता हूं. ठीक है ना? सामने वाला मेरे बस एक अंश से परिचित होता है. ये बात ठीक है? सामने वाला मुझे बस पार्शियली जानता है. मैं पूरा क्या हूं ये सिर्फ मैं जान सकता हूं, क्योंकि सिर्फ मैं अपने साथ सदा रहा हूं. कोई और मेरे साथ सदा नहीं रहा है. सिर्फ मैं हूं जो सोते जागते अपने साथ हूं. तो मैं क्या हूं ये सिर्फ और सिर्फ मैं जान सकता हूं. सामने वाले की मेरे मन में जो भी छवि होगी वो आंशिक होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, खंडित होगी, आधी अधूरी होगी. और इतना ही नहीं होगा, वो पुरानी होगी, क्योंकि मैं जो हूं मैं अभी हूं, और उसके मन में मेरी जो छवि है वो अतीत से आ रही है. अब एक आधी अधूरी, खंडित और पुरानी छवि को कायम रखने के लिए मैं क्या सौदा करता हूं? मैं कहता हूं कि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी सच्चाई को छुपा लूंगा और तुम्हारे सामने मैं एक नकली शक्ल लेके खड़ा हो जाऊंगा. ठीक? हम सब ये करते हैं ना? और अक्सर हम कहते हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे. हम जिन भी कारणों से ये करते हो, उन सब कारणों के मूल में दो ही तत्व हैं, या तो डर या लालच. या तो हमें ये डर होता है कि सामने वाले के मन में छवि बिगड़ी तो मेरा कोई नुकसान, या हमें ये लालच होता है
कि इसको इम्प्रेस करके रखेंगे तो आगे हमें कोई फायदा हो जाएगा। इन दोनों की वजह से मैं अपनी स्वतंत्रता खोने को पूरी तरह से तैयार रहता हूं। मन मेरा मुझे यही बोलता है कि तुम बड़े होशियार हो, तुम बड़े चालाक हो, तुमने एक झूठा नकाब पहन के सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। मन हमें यही बताता है कि हमने बहुत होशियारी दिखाई। लेकिन असलियत ये होती है कि उस क्षण में जब हम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसके गुलाम बन चुके होते हैं। क्योंकि अब हम वो नहीं है जो हम हैं, अब हम वो हैं जो वो चाहता है कि हम रहें। गुलामी और किसका नाम है? इसी को तो गुलामी कहते हैं ना। आप में से कितने लोग उत्सुक हैं कि एक गुलामी का जीवन बिताएं? आशीष, तुम उत्सुक हो? तो ये ख्याल कि मैं किसी को इंप्रेस करूं, ये बात कि मेरा जीवन ऐसा रहे कि जिसमें सबके मन में मेरी एक अच्छी छवि रहे, ये ख्याल अपने मन से बिल्कुल बिल्कुल निकाल दो। पर ये तुम तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तुम ये देख ना लो कि दूसरों को प्रभावित करने की चेष्टा में तुमने क्या क्या खो दिया है। जैसे ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको प्रभावित कर रहा हूं, जबकि सच ये है कि मैं उससे प्रभावित हो गया हूं। तुम ध्यान से देखो ना, मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें प्रभावित करने के लिए तुम्हें एक नकली चेहरा दिखा रहा हूं, लेकिन असलियत देखो क्या है, तुम उससे प्रभावित हो गए हो और अपनी सच्चाई छुपा रहे हो। यही हुआ है ना। इसी बात को जब आप इंटेलिजेंटली, विवेकपूर्ण तरीके से देख लेते हैं ध्यान से, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, एक नकली जिंदगी जीने से क्या फायदा, एक ही जीवन मिला है, उसको गुलामी में गुजारने से क्या फायदा। जब ये बात आपको साफ साफ दिखाई दे जाती है कि ये सौदा, इंप्रेस करने का ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ रहा है, जब ये आपको दिखाई दे जाएगा तब आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी किसी को इंप्रेस करने की। इसके अलावा एक बात और भी है, देखो दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को लगातार इंप्रेस करना चाह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है उनके बीच में कैसा संबंध होगा? एक झूठा संबंध? उनके बीच में क्या एक असली मित्रता, एक असली संबंध, प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तो अगर आपने ऐसे ही संबंध बना रखे हैं जहां पर आपको मुखौटे पहन के रहना पड़ता है, जहां पर आपको छवियों के देश में रहना पड़ता है, असलियत नहीं, मेरा असली चेहरा मत देखो, मेरी एक छवि देखो, अगर आपने ऐसे संबंध बना रखे हैं तो इसका मतलब है कि जीवन बहुत रूखा सूखा गुजर रहा है। क्योंकि जिनके संबंध असली होते हैं, जिनकी मित्रता प्रेमपूर्ण होती है, उसमें कुछ जान होती है, उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता, उनको छवि नहीं बनानी पड़ती। तो किसी के सामने अपनी एक छवि बनाना तो वैसे भी उसके साथ एक अन्याय ही है। क्योंकि जैसे ही तुमने छवि बनाने की कोशिश की, वैसे ही तुमने रिश्ते में, उस संबंध में, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तुमने उस संबंध में मिलावट कर दी, उसे नकली बना दिया। और ये काम हम दिन रात करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो हमारे जीवन में जिसके साथ हम असली हो पाते हो। हम अपने साथ ही असली नहीं हो पाते। हम अपने आप को ही गौर से देखने से इतना डरते हैं, इतना बचते हैं, हम किसी और के सामने कैसे अपने आप को रिवील कर दें, खोल दें, उद्घाटित कर दें, बड़ा मुश्किल लगता है। याद रखना, इंप्रेस करने का मतलब है डरा हुआ होना। अगर मैं डरा नहीं हूं तो मैं इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि मैंने अपने आप को क्या जाना है,
मेरी छवि मेरी अपनी आंख में होनी चाहिए। अपने आप को देखने के लिए मेरी आंखें पर्याप्त होनी चाहिए। मुझे ये आवश्यकता ही नहीं है कि मैं अपने आप को तुम्हारी नजरों से देखूं। अगर मुझे ये करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मैं अंधा हूं, और अंधेपन के जीवन में कुछ खास रखा नहीं है। जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप यही सोचते रह गए कि मैं रिस्पेक्टेबिलिटी कैसे अर्न करूं, मैं दूसरों की आंखों में साफ सुथरा कैसे बना रहा हूं। कुछ हो नहीं पाएगा। आप इतिहास पर ही चले जाइए, तो जिन भी लोगों ने जीवन को जाना है, जो मानवता के सितारे हैं बिल्कुल, उन्होंने कभी अपनी छवि की परवाह नहीं की। वो इम्प्रेस करने के लिए नहीं जिए। इसीलिए उन्हें अक्सर प्रताड़नाएं भी बहुत मिली, गालियां भी बहुत मिली। चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का, चाहे एक्सप्लोरेशन का, साहित्य का, कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, जिन भी लोगों ने वास्तव में कुछ पाया है, वो कभी इस कंसर्न को लेके नहीं चल रहे थे, इस विचार को लेके नहीं चल रहे थे कि सब मुझसे राजी खुशी रहे। बहुत दुश्मन बने उनके। जीसस को सूली पे ही चढ़ा दिया गया। गैलीलियो ने कह दिया जब उसने जाना कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है, तो उसको भी प्रताड़ित किया गया। और इतिहास भरा हुआ है ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से। अभी ये तुम्हारी अवस्था नहीं है कि ये सवाल तुम अपने मन में आने दो, हाउ टू इम्प्रेस अदर्स। अपने आप को जानो, और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी अपनी समझ से निकले, तुम्हारे डर से नहीं। खरे रहो, ऑथेंटिक रहो, सच्चे रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले से लड़ना है। मैंने तो बिल्कुल उल्टी बात कही है। मैंने कहा है कि अगर एक प्रेमपूर्ण जीवन बिताना है तो ये धोखाधड़ी बंद करनी पड़ेगी। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? ये जो इम्प्रेशन क्रिएट करने की नीड है, ये हमारे मन में बहुत बचपन से डाल दी जाती है। एक अपनी छवि प्रतिस्थापित करो। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई और बोल देता है कि तुम बड़े अच्छे हो। हमें सिखाया ही यही गया है कि तुम सफल तब होगे जब कोई अन्य आकर के तुम्हें सर्टिफिकेट दे कि तुम बेहतरीन हो, तुमने ये पाया, तुम्हारे इतने मार्क्स आए, या कोई भी और बात। इसमें हमारी गलती बहुत कम है। हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है, हमारी शिक्षा ही ऐसी रही है। हमको लगातार ये बताया गया है कि बेटा अपने आप को दूसरे की नजरों से देखो। दूसरे अगर बोलते हैं कि तुम भले तो तुम भले, दूसरे अगर बोलते हैं कि तुम बुरे तो तुम बुरे। अपनी आंखों से खुद को देखना क्या होता है ये हमें कभी सिखाया नहीं गया। नतीजा, हमने अपनी आंखें करीब करीब खो ही दी हैं। आपके शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, जितनी फैकल्टीज हैं, अगर आप किसी का भी बहुत दिन तक इस्तेमाल ना करो तो उसे लकवा मार जाता है। आप 3 साल तक ये उंगलियां मत चलाइए, हाथ सीधा करे रखिए। 3 साल बाद आप कोशिश करेंगे भी चलाने की तो पाएंगे कि अब नहीं, खत्म हो गई, करीब करीब, बड़ी मुश्किल होगी। इसी तरीके से जो ये आपकी फैकल्टी है, जो ये आपकी शक्ति है कि आप अपने आप को अपनी आंखों से देख सकें, अपनी इंटेलिजेंस से देख सकें, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया बचपन से, तो अब ये करीब करीब खत्म होने की कगार पे है। कुछ साल और नहीं इस्तेमाल करोगे तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर तुम पक्के गुलाम बन जाओगे। फिर तुम्हारे पास अपनी आंखें शेष ही नहीं रहेंगी। फिर तुम पूरे तरीके से सामाजिक जंतु ही बन जाओगे। समाज तुमसे कहेगा
कि तुम बड़े सम्माननीय हो तो तुम मान लोगे कि मैं बहुत अच्छा हूं। समाज तुमसे कह देगा कि नहीं नहीं आपकी ये बात ठीक नहीं है, तो तुम मान लोगे ठीक नहीं है। तुम पूरे तरीके से बंधक बन जाओगे। अभी समय है, अभी सब फर्स्ट ईयर में हो, 18 साल 19 साल तुम्हारी उम्र होगी, अभी समय है, अभी चेत सकते हो। इंप्रेशन की इस दौड़ से बाहर निकलो। ये जो इंप्रेशन वाली बात है, छवि वाली बात है, ये इतनी गहरी घुस चुकी है हमारे भीतर कि अब हम में हमारा कुछ शेष ही नहीं रहा है। हम पूरे तरीके से बाहरी प्रभावों से आक्रांत हो चुके हैं। उदाहरण देता हूं, तुम यहां पर बैठ करके जैसा व्यवहार अभी कर रहे हो वो अकेले में नहीं करोगे, अपने कमरे में जब अकेले होगे तो नहीं करोगे। अभी जो तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो प्रभावित है बाकी लोगों की उपस्थिति से। क्योंकि यहां पर बाकी लोग हैं इसीलिए तुम्हारा होना प्रभावित हो रहा है, क्योंकि तुम अपने आप में कुछ नहीं हो। तुम ठीक वही हो जाते हो जैसा वातावरण तुम्हें कर देना चाहता है। तुम वातावरण के गुलाम हो। तुम्हें डांट दिया गया, तुम शांत हो जाते हो। तुम्हारे बगल में कोई बैठा है जिससे बहुत कानाफूसी करने की खुजली हो रही है, तो तुम भी चालू हो जाते हो। स्वयं क्या करना है इसकी कोई निजता तुम्हारे पास नहीं है, तो बीमारी पहले ही बहुत दूर तक जा चुकी है, बस आखिरी स्टेज पर है। अभी भी रोक सकते हो तो रोक लो, वरना इसके बाद पाओगे कि बहुत मुश्किल हो गया है। तुम देखते नहीं हो लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं। सड़क पे जो आम आदमी चलता रहता है उसको देखो, उसके भीतर अपना कुछ शेष नहीं बचा है। वो पूरे तरीके से बाहरी प्रभावों का गुलाम हो चुका है। वो ठीक वही करता है, वो ठीक वही करता है जो दूसरों को पसंद है। उसके जीवन में प्रेम भी उसका अपना नहीं है। वो शादी ब्याह भी ठीक वैसे ही करता है जैसे तुम दो लोगों ने कहा था कि रिस्पेक्टेबिलिटी बनी रहे, वहां पर भी उसके जीवन में प्रेम नहीं है। इज्जत बनी रहे इस हिसाब से कुछ करो। वो नौकरी, प्रोफेशन, काम, वर्क भी ऐसा ही चुनता है जिसमें उसको दूसरे इज्जत दें। उसको इस बात से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता कि वो काम करते हुए दिन में 10 घंटे वो खुद कैसा महसूस करता है ना। वो इसी बात पे चलने लगेगा कि मैं एक सरकारी नौकरी ले लूं, क्योंकि सरकारी नौकरी जो लोग लेते हैं उनको इज्जत बहुत मिलती है। और तुम में से कई लोग अभी से ही उस जाल में फंस चुके होंगे। तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि काम जीवन होता है। अभी से लेकर के 60-70 साल की उम्र तक तुम दिन के 10-12 घंटे काम करते हुए गुजारोगे। काम का निर्धारण यह देख के नहीं किया जा सकता कि माँ बाप या समाज इससे मुझे कितनी इज्जत देगा, मेरी कैसी छवि बनेगी। काम का निर्धारण तो बस इससे किया जा सकता है कि मैं उन पलों को जीऊंगा कैसे। रोज दिन के 10-12 घंटे मुझे जीने हैं इस काम के साथ, मैं कैसे जीऊंगा। पर यह विचार ही हमारे दिमाग से बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि हमारा दिमाग बस इंप्रेस करने की होड़ में लगा हुआ है। हम पूरी तरीके से भेड़ बन चुके हैं जो दूसरों के प्रभाव में चलती रहती हैं, जिनका अपना कोई विवेक नहीं होता। और तुर्रा ये कि हम सोच रहे हैं कि हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि भेड़ों का एक झुंड एक तरफ को भागा चला जा रहा हो और हर भेड़ ये सोच रही हो कि बाकी सब भेड़ें उधर इसलिए चल रही हैं क्योंकि मैं उधर को चल रही हूं, जैसे मैंने सबको प्रभावित कर रखा है। वो इतनी बेहोश है कि उसे खबर भी नहीं कि तुमने किसी को इंप्रेस नहीं कर रखा, तुम सिर्फ गुलाम हो दूसरों के। इस बेहोशी में जिंदगी बिताना बहुत कष्ट को आमंत्रण देना है। तुम देखो ना, ठीक अभी तुम कॉलेज में आए हो, तुम में से बहुत कम लोग होंगे वाकई, और बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर कॉलेज की यही हालत है। तुम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपनी समझ से, अपने विवेक से,
अपने आनंद के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि मुझे बहुत मजा आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने में, कॉशीज इक्वेशन देख करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है। उनमें से बहुत कम लोग होंगे, शायद ही ऐसा कोई हो जो इस आनंद के कारण यहाँ पर हो। तुम में से ज्यादातर लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि समाज में इंजीनियर की छवि अच्छी है और तुम दूसरों से प्रभावित हो गए, दूसरों ने कहा कि चले जाओ इंजीनियरिंग कर लेना अच्छा है। दोनों ही कारण बाहरी हैं, दोनों ही कारण बाहरी ही हैं। दूसरे तुम्हें डायरेक्टली कहें, सीधे सीधे कहें कि इंजीनियरिंग कर लो बेटा, बहुत स्कोप है आगे, तो ये भी एक बाहरी कारण है। और तुम इंजीनियर इसलिए बनो क्योंकि इंजीनियर बन के तुमको इज्जत मिल जाएगी किसी की नजर में, तो ये भी एक बाहरी कारण है। जो एकमात्र उचित कारण हो सकता है इंजीनियरिंग करने का, वो हमारी जिंदगी से गायब है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बीमारी पहले ही अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, उसको यहीं पर रोक दो। इंप्रेस करने की ये होड़ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, पूरा का पूरा गुलाम बना देगी। अपनी शर्तों पे जिंदगी नहीं जी पाओगे, और जिंदगी एक ही है। आशीष, बात आ रही है समझ में? भाई अगर कोई वास्तव में असली आदमी है तो उसको दिखाओ अपना असली चेहरा जैसे तुम हो, और ये विश्वास रखो कि अब जो होता हो। अपना एक नकली चेहरा दिखा करके, एक नकली संबंध बना करके मिल भी क्या जाना है? बने तो असली बने, मैं भी असली, तुम भी असली, और फिर उससे बनेगा एक असली संबंध। जिन संबंधों की आधारशिला ही झूठ पे हो, वो किसी को क्या दे देंगे? अगला सवाल बोलो। सर, इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्योंकि सर इच्छाएं कलेश के कारण होती हैं सर, दुख दर्द सब उसी से होता है, तो इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या नाम है सर? ब्रजमोहन लोला। ब्रजमोहन पूछ रहे हैं कि इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, क्यों नियंत्रित करना है? देखो, सवाल ये तुम सबका है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने ये सवाल इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में ही पर सामने आया जरूर होगा, और आता है, ठीक है ना? तो इसको बिल्कुल यही मान के सुनो कि सवाल तुम्हारा ही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात उठे ही क्यों? क्यों उठती है? क्यों उठती है? निश्चित रूप से अगर तुम्हें इच्छाओं के माध्यम से बहुत आनंद आ रहा होता तो तुम्हारे मन में ये विचार ही नहीं आता कि इच्छाओं को रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हारा ये अनुभव जरूर है कि इच्छाएं तुम्हें कष्ट दे रही हैं, गर्त में ढकेल रही हैं, है ना ब्रजमोहन? तभी ये बात उठ रही है कि इनको किसी तरीके से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, इनका शमन किया जाए। ये जो शब्द है इच्छा, डिजायर, इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्रजमोहन ने कहा अपनी इच्छाओं को कैसे रोकें। इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। जब आप कहते हैं अपनी इच्छाएं तो आप कहते हैं माई डिजायर, माई डिजायर। ये जो डिजायर है,
क्या इसमें कुछ भी माई है? मेरा क्या इसमें कुछ भी है? अगर इसमें मेरा कुछ हो तो फिर मेरा इस पे कंट्रोल भी हो सकता है। निश्चित रूप से मैं सिर्फ उसी चीज को बस में कर सकता हूं जो मेरी हो। जो मेरी हो ही ना, उसको कंट्रोल करने का कोई उपाय, कोई तरीका हो नहीं सकता। क्या डिजायर्स मेरी हैं? हम कहते जरूर हैं कि डिजायर मेरी हैं, पर क्या वो डिजायर्स हमारी होती हैं? हाँ, हम उनसे संबंध बहुत गहरा बैठाते हैं और हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूं, मेरी चाहत है। पर उसमें मेरा कितना है, उसको जरा ध्यान से देखिए। क्योंकि जोर जो है ना ब्रजमोहन, वो इच्छा में नहीं है। जो ताकत है, जो बल है, वो डिजायर में नहीं है। जो ताकत है वो माय डिजायर में है। डिजायर को ताकत मिलती है इस विचार से कि ये मेरी डिजायर है। क्या आप किसी दूसरे की डिजायर से भी उतने ही ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं? भाई, आप किसी के साथ खड़े हैं, उसको डिजायर हो रही है पिज्जा खाने की, तो क्या आप दौड़ पड़ते हैं पिज्जा खाने? आप तो तभी डिजायर के बस में आते हैं जब आप अपने आप से ये कह देते हैं कि ये मेरी डिजायर है। ठीक है ना? तो बात डिजायर की नहीं, बात इस मेरेपन की है, दिस माइनेस। एक कंपनी एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करती है, वो विज्ञापन दिखाने शुरू करती है, और जो आपको विज्ञापन दिखा रहा है वो बहुत चतुर है। वो करीब करीब एक मनोवैज्ञानिक ही है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि मन को, सामने वाले के मन को प्रभावित कैसे किया जाता है। और याद रखिएगा फिर कि पिछले सवाल में और इस सवाल में बड़ा सीधा संबंध भी है, इंप्रेस करना, प्रभावित करना। तो जो एडवर्टाइजर है वो भली भांति जानता है कि आपके मन को कैसे बस में लाना है। तो जब आप पहले पहल उसका विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, तो आप कहते हैं अरे बेकार ही एक और मोबाइल फोन लॉन्च हो गया, और ये कैसा भद्दा विज्ञापन है। पर वो आपसे कहीं ज्यादा चालाक है। टीवी पर वो विज्ञापन वो आपको एक नहीं 500 बार दिखाएगा। टीवी पर ही नहीं दिखाएगा, वो आपको इंटरनेट पर भी दिखाएगा, रेडियो पर भी सुनाएगा, अखबार में भी दिखाएगा, आप चल फिर रहे हैं तो होर्डिंग्स पर भी दिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके कुछ दोस्त वो मोबाइल खरीद लेंगे तो उनके खरीदने के माध्यम से भी उस मोबाइल का प्रचार हो जाएगा। और ऐसे देखते देखते 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आप बाजार की तरफ चल दिए हैं वही मोबाइल खरीदने, और तब आपको रोका जाएगा तो आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी इच्छा है कि मैं ये मोबाइल खरीदना चाहता हूं। और ठीक इसी तरीके से धंधे चलते हैं। विज्ञापन का पूरा मनोविज्ञान ही यही है, ऐसे ही काम होता है। प्रश्न ये उठता है कि ये इच्छा आपकी थी या आपके भीतर घुसेड़ी गई, आरोपित की गई, इम्प्लांट की गई, पूरी ताकत से आपके भीतर इसको डाला गया। क्या ये आपकी इच्छा थी? लेकिन इस समय जब आप बाजार जा रहे हैं और आपका मन अब पूरे तरीके से उस मोबाइल का हो चुका है कि मुझे ये मोबाइल चाहिए ही चाहिए, इस समय अगर आपको कोई कहेगा कि बेटा ये तो तुम्हारी इच्छा है ही नहीं, तो आप लड़ने को उतारू हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मेरी ही इच्छा है, मुझे खरीदना है। कोई भी इच्छा आपकी इच्छा नहीं होती। ये जो हमने उदाहरण लिया, इसमें कहानी बहुत स्पष्ट है और डायरेक्ट है, तो इसीलिए देखना आसान है। जो आपकी बाकी इच्छाएं भी होती हैं वो किसी न किसी बाहरी स्रोत से ही आ रही होती हैं। स्रोत बाहरी है इच्छा का, आपकी अपनी कुछ नहीं होती इच्छा।
क्योंकि इच्छा, हमेशा याद रखिए, किसी बाहरी वस्तु की ही तो है। वो वस्तु या व्यक्ति या जगह जो भी है, जो आपकी इच्छा का केंद्र है, वो आपकी सेंसेस के माध्यम से आपके दिमाग पर एक तरह का आक्रमण करता है। और दिमाग की, ब्रेन की प्रवृत्ति ये होती है कि वो रेपिटेशन से प्रभावित हो जाता है। वो आक्रमण अगर बार बार होगा तो दिमाग उससे, ब्रेन उससे तादात्म्य स्थापित कर लेगा। इसी का नाम इच्छा है। ब्रेन अब उसको पाना चाहेगा। इसको साइकोलॉजी की भाषा में कंडीशनिंग कहते हैं, कि आपके दिमाग की कंडीशनिंग कर दी गई। आप सोचते भले ये हो कि इच्छा मेरी है, पर वो इच्छा आपकी नहीं है, वो आपके दिमाग की कंडीशनिंग है। आप अगर एक हिंदू हैं तो बहुत संभावना है कि आप एक मंदिर के सामने से निकलें तो आपको इच्छा हो कि हाथ जोड़ लूं या दर्शन कर लूं या प्रसाद चढ़ा दूं। आप अगर किसी और धर्म से हैं तो आपके भीतर मंदिर को देख के ये इच्छा उठने की संभावना बहुत कम है। ये इच्छा आपकी है या आपके धर्म की है। याद रखिए, धर्म आपने चुना नहीं था। आप में से किसी ने भी अपना धर्म चुना नहीं है, लेकिन चूंकि आपको हिंदू के रूप में संस्कारित कर दिया गया है, कंडीशन कर दिया गया है, तो अब ये इच्छा आ गई साथ में। ये इच्छा आपकी नहीं है। ये इच्छा उन सब ताकतों की है जिन्होंने आपको हिंदू या मुसलमान बनाया। पर आप कहेंगे आज तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं दर्शन कर लूं। बेटा, आपका कुछ नहीं है इसमें। जब आप इस बात को जान जाते हो कि माई डिजायर में, माई तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिजायर ही डिजायर है, तब उस डिजायर का जो जोर है वो कम हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। इच्छा से लड़के इच्छा को नहीं जीत पाओगे। इच्छा को समझ के उससे जीत जाते हो। जब ये समझ जाते हो कि ये इच्छा मेरी नहीं है, ये किन्हीं और ताकतों की है और इससे मैं बस तादाद में बनाए बैठा हूं पागल की तरह। जैसे एक कहानी होती है कि कोयल इतनी चालाक होती है कि वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उनको अपना मान के सेता रहता है। ठीक वैसे ही इच्छा किसी और की है, दौड़ते उसके पीछे आप हो, क्योंकि आपने मान लिया है कि मेरी है। जैसे कौवा मान लेता है कि अंडे मेरे हैं। अगर उसने ध्यान दिया होता तो व्यर्थ के प्रयत्न से, दौड़ धूप से बच जाता। और फिर जो हार्ट ब्रेक होता है, जब दिल टूटता है, कि जब उसमें से पक्षी निकलते हैं छोटे और कौवा देखता है कि मेरे बच्चे तो हैं ही नहीं, तो जो दिल टूटता है, जो कष्ट होता है, वो उससे भी बच जाता है। आप भी बच सकते हैं इन सबसे, अगर आप ध्यान से देखें ये इच्छा कहां से आई, किसने इम्प्लांट करी मेरे भीतर। अभी तक हमने जिन दो उदाहरणों को लिया, उन दोनों में सामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं आपके भीतर इच्छा बैठाने के लिए। दो तरह की कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग शब्द हमने लिया था ना, दो तरह की होती है। पहली तो सामाजिक, जहां पे कोई और व्यक्ति या अवधारणा या धर्म, फिलॉसफी, इस तरह की चीजें आपके भीतर किन्हीं विचारों को जमा दें, तो ये कहलाती है सोशल कंडीशनिंग। और दूसरी होती है फिजिकल, जो आपके शरीर में ही बैठी हुई है, जो आपके शरीर में ही बैठी हुई है। जैसे खाने की इच्छा, जैसे कि अब आप सब लोग एक विशेष उम्र में आ गए हैं। आपने कभी ये सोचा कि अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है, लड़की हैं तो लड़कों के प्रति। आपने कभी ये सोचा कि ये घटना 18 की उम्र में घटती है, 8 की उम्र में क्यों नहीं घटती? अगर हम जरा भी विवेकपूर्ण हैं तो हम इस बात को तुरंत समझ जाएंगे
कि मैं इस बात से तादाद में बना लेता हूं कि ये मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति को देखूं या इसके पास जाऊं या बात करूं या संबंध बनाऊं, जो भी हम तादाद में बना लेते हैं कि ये मेरी इच्छा है। और हम इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि अगर ये मेरा होता तो ऐसी इच्छाएं आज से 5 साल 10 साल पहले भी तो घट सकती थी, तब क्यों नहीं हुई। हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि अगर कोई चुंबक, कोई मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स को आकर्षित करता है तो चुंबक को ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैंने आकर्षित किया, और न आयरन फाइलिंग्स के पास ये कहने की कोई वजह है कि हम आकर्षित हुए। ये तो एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है, पूरे तरीके से एक मैकेनिकल चीज है जिसका कुछ भी चेतना से लेना देना नहीं है। ये तो प्रकृति के जड़ नियम है कि एक विशेष प्रकार का मॉलिक्यूल है जो दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, उसका फील्ड है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे ही एक उम्र के बाद आपके भीतर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पैदा हो गए हैं जिसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने एप्लीकेशन नहीं दी है कि मेरे हार्मोन्स रिलीज हो, अब ये बस होता है, आपने इसमें कुछ नहीं किया। पर आपकी इतनी बुद्धि नहीं जगी है कि आप कहें कि इस शरीर के हार्मोन्स मेरे भीतर लड़कियों को देखकर या लड़कों को देखकर कुछ प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। आप उसको माई डिजायर मान लोगे और आप कहोगे शी इज माई लव। और ये सुन के ही आपको कितना मजा आ रहा है। आपकी इतनी बुद्धि बिल्कुल नहीं जागेगी कि यही हार्मोन अगर आपके भीतर से निकाल दिया जाए, यही मॉलिक्यूल, वो एक मॉलिक्यूल ही है जो लैब में भी पैदा किया जा सकता है। कि अगर यही मॉलिक्यूल मेरे भीतर से निकाल दिया जाए तो ये सब डिजायर खत्म हो जानी है तुरंत। खेतों का बैल देखा है ना, उसको गाय को देख के कोई डिजायर नहीं होती। ठीक है, हम हंस लें पर बात को समझ भी लें। उस लव में तुम्हारा कुछ नहीं है, वो फिजिकल कंडीशनिंग है, कुछ मॉलिक्यूल्स का खेल है, और उसके लिए तुम बड़े बड़े गाने गाने लग जाते हो। मरने मारने को उतारू हो जाते हो, जैसे सड़क का सांड। सड़क के सांड से पूछो तो कहेगा वो फलानी गाय से मुझे बड़ा प्रेम हो गया। और जैसे तुम्हें हंसी आ रही है सांड को देख के, वैसे ही कोई भी विवेकपूर्ण आदमी होगा तो उसे हंसी आती है तुम्हारे प्रेम को देख के। ये कैसा प्रेम है कि जब खून में कुछ रसायन मिल गए तो पैदा हो जाता है, और वही रसायन हटा दिए जाए तो शिथिल पड़ जाएगा, और उन्हीं रसायनों की ओवरडोज कर दी जाए। अभी यहाँ बैठे हो तुम सबको मेल हार्मोन, जितने भी यहाँ बैठे हैं लड़के, उनको अभी मेल हार्मोन कह के इंजेक्शन लगा दिया जाए, तुम्हारा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा जीवन लव से लबालब हो जाएगा। ज्यादातर लोग इस बात को सिर्फ हंसी में उड़ा देंगे, पर कुछ लोग हैं
जिनको ये बात बिल्कुल भीतर तक चोट करेगी और उनके लिए ये एक समझ बन जाएगी